Okay, beta. So this is basically the May June 2020 and then paper 2022. Um, the key point is I'm just going to discuss the questions the entire paper and I'm just going to tell you कि भाई कहाँ क्या चीजें आपको अच्छे तरीके से करनी है जहाँ definition वाला part आएगा obviously I'm going to skip it. Explain the properties of magnesium by question number 1. Magnesium has a melting point of 650 degrees Celsius, ठीक है, and high electrical conductivity. Melting point high है, यानी they're asking about why it has a high melting point, ठीक है, और electrical conductivity क्यों ज्यादा है. ये दो reasons आपसे they are asking about these two reasons. तो आपने इनके पास सबसे पहले you have to write down the answer that cover both of these. तो आप लिखेंगे कि magnesium has a strong metallic bond और electrostatic force, जो भी आपको समझ आएगा, of attraction between positive metal ion and C of delocalized electron. It conducts electricity due to the presence of delocalized or free electrons. ठीक है, clear? So simple सा concept है. You have to give about why they have a high melting point. So because of the strong electrostatic force of attraction present between the metal ion and a sea of delocalized electron, and as it has a sea of delocalized electrons, it can conduct electricity. Now, a very simple question about when magnesium is heated in air, magnesium oxide is the major product. Okay, a small amount of magnesium nitride, Mg3N2, also produced. Calculate the oxidation number. Oxidation number of magnesium in Mg3N2. So Mg3N2 में you have to calculate the oxidation number of मैग्नीशियम. सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन आपके पास -3 होता है, तो अगर मैं इसे लिख लूं 3Mg plus 2 times of nitrogen -3 is equals to 0. So 3Mg minus 6 is equals to 0. 3Mg is equals to plus 6 or Mg is going to be plus 2. Okay, so the oxidation state ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2 और नाइट्रोजन की होगी -2. वैसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट लेकिन सिंपल मैंने एक मेथड रिवाइज करवाना था, दैट्स व्हाई. अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि इन ऑल ऑक्सीडेशन और इन all compounds of group 1 and group 2, the oxidation state of all group 2 element is always +2. ठीक है, और group 1 की हमेशा क्या होती है +1. तो बेसिकली नाइट्रोजन -3 या -2 है, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है. मैग्नीशियम तो हमेशा +2 होता है. अगर यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम होता बेटा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती. मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी. यहाँ हमको मैग्नीशियम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको मेथड रिवाइज करवा दिया. नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस between nitrogen. Explain your answer. So obviously जब आपके पास रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम का हीटेड इन एयर, यानी एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है, और एयर में आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा और ये कंपाउंड बनेगा. आस्किंग अबाउट, आप ये बताइए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जो फॉर्म हो रहा है कौन सा रिएक्शन है. तो फॉर श्योर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम, कहां से चेंज हो रही है, +2 से 0 से जा रही है +2 में. सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, आप कहेंगे Mg oxidize from 0 to +2.
ठीक है, Mg ऑक्सीडाइज या बल्कि इसको देखें Mg ऑक्सीडाइज टू Mg2 प्लस एंड नाइट्रोजन, आपको दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, reduces from N to nitrogen -3. ठीक है, define enthalpy change of formation again. अब I asked this definition in one of the mock exam and नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर क्यों सही नहीं आया. So the enthalpy change, दोबारा लिख रहा हूं बेटा, associated when 1 mole of a compound is formed from its elements. ठीक है, so this is basically the definition of its enthalpy change under elements in standard state. ठीक है जी, so this is word for 2 marks. You have to write down the enthalpy change associated when 1 mole of a compound is formed from its element in standard state. ठीक है, under standard condition चाहे तो आखिर में लिख सकते हैं. Now clear? When इतने gram of magnesium is burned with excess of nitrogen, magnesium nitride is 23.05 kilojoules of energy is released. Calculate the enthalpy change of formation of magnesium nitride. ठीक है बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, आपको एनर्जी रिलीज given है, means you are provided with the Q value. Okay, so the Q value is given which is 23.05. मुझे कैसे पता चलेगा कि Q given है? With the unit. If the unit is kilojoules or joules, इसका मतलब ये Q value given है. ठीक है, क्लियर? अब हाउ टू कन्वर्ट Q इनटू एंथैल्पी चेंज, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे मैग्नीशियम के, व्हिच इज 3.645 ग्राम डिवाइडेड बाय द MR इसका होता है जनाब 24.1 या 24 पॉइंट समथिंग. लेट्स चेक विद द पीरियोडिक टेबल. सही है, ओके, so the magnesium is 24.3. 24.3 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. आपको पता होना चाहिए डेल्टा H इज इक्वल्स टू 23.05 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. अब क्वेश्चन ये है कि हम किसके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे इसे, हम किसके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे. अब देखिए, इसमें अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि यू आर प्रोवाइडेड विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम. आपको इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. कैसे? आपको लिखना पड़ेगा Mg प्लस N2 फॉर्मिंग Mg3N2. सही है, फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख रहे हैं ना इसकी. अब फॉर्मेशन की इक्वेशन के लिए यहाँ 3 आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज 3 सॉलिड प्लस एंड फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ दिस. यू हैव द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये आ गए ना आपके पास, बट यू नीड द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा जिसकी फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड उससे. तो जो भी आपके पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आए हैं, आप उसे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड आ जाएगा. ठीक है, और फिर उससे आपने इसको डिवाइड करना है. क्लियर? ये बात दोबारा से सुनिए एक दफा. मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन डिफरेंट तरीके से. इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है उसे समझने की कोशिश कीजिए. देखें, यू आर प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद द मास ऑफ मैग्नीशियम ओनली. सही, और उसने कहा कि जनाब इतने किलोजूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड निकालनी है तो आपको Q को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड जिसकी फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है उससे. ठीक है, क्लियर? उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए मैग्नीशियम नाइट्राइड के, Q वैल्यू उसने ऑलरेडी गिवन है. सही है. नाउ
Equation of formation of magnesium nitride is this Mg3N2. सही, आपको नजर आ रहा है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम नाइट्राइड इज 3:1. So if I have the number of moles of magnesium which is 3.645 divided by 24.3, इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड के. आप इस नंबर ऑफ मोल से 23.05 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर बेटा? So that's how you have to solve this one. इसमें अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि फॉर्मेशन में ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से डिवाइड कर देते हैं. आपको मैग्नीशियम से डिवाइड नहीं करना, बल्कि आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है. ठीक है, सो आगे चलते हैं बेटा विद क्वेश्चन नंबर 2. रेडियम इज एन एलिमेंट फाउंड in the group 2 of the periodic table. It is a crystalline solid at room temperature and conduct electricity. Radium chloride LaCl2 has a melting point of 900 degree and it is soluble in water. Melting point 900 degree यानी high melting point है और soluble in water. Predict the lattice structure of RCl2. देखिए ये जो दोनों properties हैं, these two properties, these are the properties of a ionic compound, है ना? They have a high melting point and they are soluble in water. तो बेटा these are the properties of ionic compound. Now predict the lattice structure of का मतलब solid structure based on the properties described. तो इसका हमेशा ionic compound का तो lattice structure होता है, that's called giant ionic lattice. ठीक है, giant ionic lattice. याद रखिएगा, high melting point, soluble in water is a clear indication that it's an ionic compound, and the ionic compound has a giant ionic lattice structure. They say draw a dot and cross diagram show the arrangement of RaCl2. Ra ग्रुप 2 का है. ठीक है, अब देखें, आपने RaCl2 की डॉट एंड क्रॉस नहीं पढ़ी, बट यस आपने मैग्नीशियम क्लोराइड की डॉट एंड क्रॉस पढ़ी है, आपने कैल्शियम क्लोराइड की डॉट एंड क्रॉस पढ़ी है. अब इस डॉट एंड क्रॉस में यू हैव टू जस्ट शो द आउटर मोस्ट अरेंजमेंट. तो आउटर मोस्ट अरेंजमेंट तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड या रेडियम क्लोराइड सबका एक जैसा ही होगा, बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम द ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो इनके आउटर मोस्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. सही है, तो आपने क्या करना है जनाब, आपने लिखना है रेडियम बीच में. ठीक है, और रेडियम के आउटर मोस्ट शेल में आप क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल अब एम्प्टी है विच इज 2+. सही है, और फिर आपने एक क्लोराइड ड्रॉ करना है यहाँ पर. सही है, और इस क्लोराइड के अराउंड आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन रेडियम का आ जाएगा विद 1 माइनस चार्ज, एंड यू कैन ड्रॉ क्लोराइड हियर. सही है, with 1 2 3 4 5 6 7 or -1. ठीक है, so this is basically the dot and cross diagram for radium. सही, this is basically the dot and cross diagram. Solid radium and calcium show similar reaction with water. यानी कैल्शियम का और इनका रिएक्शन सेम है, but the reaction occur at different rates. Separate sample of each containing a single piece of solid radium are added to the equal volume of cold water. वो कह रहे हैं कैल्शियम और रेडियम सिमिलर तरीके से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, but their rate of reaction is different. उसके बाद इसने कहा each sample contain equal number of moles of solid and high and water in excess. ठीक है जनाब, construct equation for the reaction between radium and water. हमने मैग्नीशियम और वाटर की रिएक्शन की इक्वेशन पढ़ी है और अक्सर एग्जाम में ये इक्वेशन पूछी जाती है. अलमिया ये है कि lots of students do not write down the correct formula of magnesium, plus they always forget to write the hydrogen gas produced. Metal with water always forming metal hydroxide and a hydrogen gas. So in a similar way, when you have radium, state symbol भी लिखिए आप, 2H2O liquid forming radium hydroxide. ठीक है, आप इसके साथ aqueous भी लिख सकते हैं, solid भी लिख सकते हैं,
प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइडेंटिफाई which reactant, radium or calcium, reacts with water at a faster rate. Suggest how observation each reaction would different. देखें रेट उसने कहा किसका फास्टर होगा, क्लियर, और उसके बाद उसने कहा कि इनकी ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस क्या होगा। तो अब सबसे पहले लिखते हैं कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि रेडियम और कैल्शियम, इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल से देखना पड़ेगा कि द वन विच इज बिलो, तो कैल्शियम के नीचे आप देखें रेडियम इज द लास्ट मेंबर। डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, नॉट नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो रेडियम विल रिएक्ट विद अ फास्टर रेट। तो आप लिखेंगे रेडियम, ठीक है, प्रोड्यूस effervescence of gas at a faster rate। ठीक है, इसको इस तरह आंसर करना है आपने। क्या आपको ये भी आंसर करना है कि यस यू टॉकिंग अबाउट द रेडियम रिएक्ट मच फास्टर एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड द ऑब्जर्वेशन दैट इट प्रोड्यूस अ गैस effervescence of a gas at a faster rate। ठीक है, और एक काम और होगा कि रेडियम में जो रेडियम which is in a solid form disappear much faster as compared to calcium। ठीक है, सॉलिड डिसअपियर भी फास्टर होगा, एफरवेसेंस भी ज्यादा आपके पास होगी। नाउ दे आस्किंग अबाउट कि व्हाई रेडियम, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट। आप बोलेंगे गोइंग डाउन द ग्रुप, हमने पढ़ा था ना, एज गोइंग डाउन द ग्रुप the radius increases the outermost electron present in the in the differential, the radius increases, nuclear charge decreases। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। तो आप लिखेंगे गोइंग डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन, ये हमेशा मेटल्स की रिएक्टिविटी में यही आंसर होगा। as the atomic radius shielding effect increases, the ionization energy value decreases, and reactivity इनके हमेशा याद रखिएगा बेटा, whenever they ask about the reactivity of metal going down the group, आप इस तरह भी explain कर सकते हैं, और you can explain in any other way, but the more precise answer G value, because metal जब भी react करते हैं they always react by removing electron, and if the ionization energy value is less, removal of electron easier होगा और आपके लिए आसान होगा उसे react करवाना। One of the solution is cloudly when the reaction is finished। ठीक है, at the end of the each of this reaction, universal indicator is added to the each reaction, suggest the pH value of the solution made in both reaction, explain your answer। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि suggest the pH values of the solution made in both reaction, indicator ऐड किया गया, इनकी pH क्या होगी और किस तरह से आप उसे explain करेंगे। ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट तो क्या होगा, द फर्स्ट की पॉइंट ये कि द pH ऑफ सॉल्यूशन, पहले बताइए जनाब, मेटल को जब आप रेडियम को रिएक्ट करवाएंगे वाटर से तो आपको पता है क्या बन रहा है, इट इज बेसिकली रेडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और कंपैरिजन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ये दोनों बातें याद रखिएगा। एज दे आर द हाइड्रो ऑक्साइड, so the pH of the solution must be greater than 7।
है ना, अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, सॉरी, greater than 7, it's an alkaline solution. और the pH of, अब देखें हाइड्रो ऑक्साइड की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है, द सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, और I can say that they become more alkaline down the group, ये बात याद रखिएगा, they become more alkaline, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो द pH ऑफ रेडियम हाइड्रोक्साइड is more basic, more basic, or due as it is more soluble in water, ठीक है, soluble ज्यादा होने की वजह से they donate more OH negative ion, और उनकी solubility ज्यादा होती है। aqueous solution of calcium halide, a very important question, calcium halide contain either chloride, bromide और iodine, complete the table। अच्छा, मेथड बताना है और ऑब्जर्वेशन बताना, याद रखिएगा, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड आयन, हैलाइड आयन के टेस्ट का के लिए आपको जो सॉल्यूशन ऐड होता है दैट्स बेसिकली AgNO3, ठीक है, एक्वस AgNO3, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, वैसे एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जाता है, सॉरी, और फॉलोड बाय NH3 एक्वस, सही है ना, यही दो चीजें ऐड की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन विद कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट PPT, ऑब्जर्वेशन विद कैल्शियम ब्रोमाइड क्रीम प्रेसिपिटेट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन विद कैल्शियम आयोडाइड येलो PPT, और कॉमन सी बात है, ठीक है, व्हाइट PPT लिख देंगे आप डिसॉल्व इन डाइल्यूट NH3, ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे दिस गेट डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3, और इसके बारे में लिखेंगे इनसॉल्युबल इन NH3, ठीक है, जैसा लेक्चर में टेबल था दैट्स इट, द एंटायर टेबल यू हैव टू कॉपी पेस्ट हियर, सही है। सो एज रिएजेंट याद होना चाहिए, आइदर यू कैन राइट Ag पॉजिटिव एक्वस, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है कि आप लिखें AgNO3 पूरा एक्वस और फिर NH3। नाउ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, it says इतने moles of hydrogen iodide is added to a closed vessel and to left to the dynamic equilibrium. The total pressure is 100 kilopascal. Okay, Janab, moles and total pressure. What is meant by the term dynamic equilibrium? A condition in a reversible reaction when the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. Describe one difference in the initial appearance of the reaction mixture compared to the mixture at equilibrium. देखिए जनाब, क्वेश्चन समझने वाला है, उसने कहा डिस्क्राइब वन डिफरेंस इन द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी रिएक्शन मिक्सचर इनिशियली किस तरह का होगा और इक्विलिब्रियम पे किस तरह का होगा। तो इनिशियली दे ओनली हैव हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, ये लिखा है ना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज क्लोज वेसल में रखा, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज बेसिकली कलरलेस। तो आप लिखेंगे कि इनिशियली द सॉल्यूशन नहीं है, इनिशियली द गैसेस आर इनिशियली कलरलेस गैस, लिख दो, ठीक है, और फिर एट इक्विलिब्रियम क्या कलर होता है भाई अमोनिया, सॉरी इसका कलर क्या होता है, विच इज आयोडीन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आयोडीन का ब्लू ब्लैक सॉलिड पर्पल वेपर, एट इक्विलिब्रियम पर्पल कलर, बस, कलरलेस टू पर्पल। इनिशियली जब आपने मिक्स किया था तो कलरलेस था और इक्विलिब्रियम पे पर्पल हो जाएगा। Kp एक्सप्रेशन, so yes, the partial pressure of iodine
स्मॉल ब्रैकेट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, इट मस्ट बी 100% क्लियर। प्री का एक मार्क है कि आस्क अबाउट द केपी एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 86.4। Calculate the amount of HI present in the equilibrium mixture। ठीक है जनाब, इनिशियली मोल्स आपको गिवन है 100 kPa। इक्वेशन लिखते हैं, एक मिनट दीजिएगा, जस्ट गिव मी 5 minutes, ओके। Okay. At equilibrium, the partial pressure of hydrogen iodide is 86.4 kPa। ठीक है जनाब, partial pressure given है। Calculate the amount in moles। Calculate the amount of HI present in the equilibrium mixture at show your working। ठीक है जनाब, initial moles of hydrogen iodides are given, so yes, write down the equation first। 2 hydrogen iodide forming हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन। ठीक है जनाब, इनिशियली कितने थे 0.025 और ये 0 था, ये 0 था। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम अगर हम कहते हैं जनाब, एट इक्विलिब्रियम ये x है, ये x है, तो ये हो जाएगा 0.025 माइनस कितने x हो जाएंगे, ये 2x। सही है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे आप। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास अमाउंट इन मोल्स आ जाएंगे। सही है, सो हमने कहा जनाब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर kp की वैल्यू गिवन होती है ना, kp की वैल्यू गिवन होती, जो कि शायद यस, जो कि गिवन नहीं है, तो हम बहुत आराम से सारी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ एक काम ये करना है, देखें आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा ही ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। क्लियर। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड चाहिए, पार्शियल प्रेशर आपके पास गिवन है, टोटल प्रेशर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इन सारे नंबर ऑफ मोल्स को आप एड अप कर लें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे जनाब, 0.025 माइनस 2x प्लस x प्लस x। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम। तो कितने बचे, माइनस करने के बाद 0.025 ही बचा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर 86.4 which is equals to number of moles of hydrogen iodide आपको पता लगाने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.025 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर आपको गिवन है कितना, देखें द टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल 100 kPa, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 kPa से, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई रिकमेंड डू सॉल्व इट बाय, देखिए दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये था कि आपको केपी की वैल्यू गिवन हो, सॉरी हाँ, केपी की वैल्यू गिवन होती तो बहुत आसान होता, हम ये सारी वैल्यूज यहाँ इंसर्ट करते और केपी आ जाता। इसने क्या किया, दे गिव यू द पार्शियल प्रेशर वैल्यू, तो हमने क्या किया, हमने पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला यूज किया। अब इस पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से निकाल दीजिए, टोटल प्रेशर आपके पास गिवन था। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट बैक अगेन, दोबारा से समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर रहा होगा माइंड में, तो लेट्स डू इट वन मोर टाइम। क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे तरीके से, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ। इसने कहा एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 86.4। अब सबसे पहले पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर।
ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ ए लगा देते हैं। क्लियर। अब इसने पार्शियल प्रेशर दे दिया, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर से नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आई नीड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड टोटल प्रेशर मुझे गिवन था ऊपर 100 kPa। आई नीड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन लिखी, टू HI फॉर्मिंग H2 प्लस I2। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है 0.025, ये जीरो था, सॉरी ये जीरो था। एट इक्विलिब्रियम अगर ये x बना तो इसमें से कितना, अकॉर्डिंग टू द मोलर रेशियो हम 2x माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि 1:2 है। उसके बाद हम इन सबको एड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। तो जब हमने एड अप किया तो बाय चांस ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचा 0.025। अगर x बच जाता तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते। अब पार्शियल प्रेशर which is 86.4 is equals to number of moles of hydrogen iodide जो हमें कैलकुलेट करना है, divided by total number of moles which is 0.025 multiply by total pressure which is 100। आपके पास number of moles की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Take a screenshot of this one and solve it later on। सही, आगे चलते हैं। अगेन यूज इक्वेशन 1 and the bond energy values, obviously bond energy values आपको इन्होंने दे दी हैं, and to calculate the enthalpy change delta H for the thermal decomposition of hydrogen iodide, show your working। यानी इस वाली this is the thermal decomposition equation, ठीक है। and they asking about कि इसकी equation लिख के इसको लिख के दिखाइए, इसकी enthalpy change सॉरी कैलकुलेट करिए to HI forming I2 plus H2। मैं क्या करूंगा, 2 times of hydrogen iodide bond forming iodine iodine bond प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 times ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 299 and this is 151 plus 4 36। this is bond breaking and प्रोडक्ट साइड पे है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आप डेल्टा H कैलकुलेट कर लीजिए, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी यहां पर भी आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। वैसे याद रखिएगा बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन, आपके पास डेल्टा एच आ जाएगी, डायरेक्ट क्लोज। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द केपी फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एच आई। अब वो बता रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि दिस इज द इक्वेशन, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो केपी की वैल्यू पे क्या चेंज आ जाएगा। तो याद रखिएगा देयर शुड बी नो चेंज ऑन द वैल्यू ऑफ केपी because we remember that the kp and the kc value only affected by temperature। सही है, क्लियर ना। तो याद रखिएगा केसी केपी की वैल्यू में हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। इट सेज HCl is prepared by adding NaCl to the concentrated sulfuric acid। HI is not prepared by this adding this। याद है ना आपको ये रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ हैलाइडाइन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोराइड में एज इट इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट तो आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, HCl मिल जाता है आपको, ठीक है, बहुत आराम से। लेकिन HBr और HI के केस में जो HBr और HI होते हैं फर्दर रिएक्ट कर जाते हैं, ओके, बिकॉज HI प्रोड्यूस, वो वही सारी स्टोरी लिखी हुई है उन्होंने, कार्बन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HI फर्दर रिएक्ट कर जाता है। पार्ट 1, identify the type of reaction occur when NaI react with concentrated sulfuric acid to form HI। जब देखें जो स्टेप 1 वाला रिएक्शन होता है ना जिसमें NaI या NaCl रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और HI बनाता है, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड यानी HI बना लेगा, ठीक है, और फिर Na2SO4 बना लेगा। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप वाला जो रिएक्शन होता है दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप वाला रिएक्शन इज बेसिकली अ एसिड बेस रिएक्शन। Write the equation for the reaction between HI and a concentrated sulfuric एसिड। याद है इस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन बनता था। तो आई थिंक आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी याद होनी चाहिए।
आयोडीन बनाता था, आई रिमेम्बर इट फॉर्मिंग H2S एंड इट्स फॉर्मिंग H2O। अब इस इक्वेशन को खुद बैलेंस कर लीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई HI रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCl नेट नॉट, तो आप लिखेंगे I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। यही बात हमने लेक्चर में भी बार बार पढ़ी थी, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। वन लाइनर है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि HI रिएक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, ठीक है। ओके जनाब, क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड, इट्स ऑर्गेनिक पार्ट। bromine reacts with butane in the presence of UV light। ओके जनाब, ब्रोमीन ने ब्यूटेन के साथ रिएक्ट किया, यस इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Two structure isomers of the molecular formula C4H9 are produced from in this reaction. Draw the two structure isomers and state the systematic name of these। अच्छा, वो कह रहे जनाब ब्यूटेन था आपके पास, which is C और ये सारे हाइड्रोजन थे, ठीक है ना, दिस इज ब्यूटेन। जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो देखिए दो तीन पॉसिबिलिटी है ना, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आपके पास ब्रोमीन यहाँ आके लग जाएगा, सो वन ब्रोमो बन जाएगा। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई स्ट्रक्चर आइसोमर की CH3 CH2 CH2 CH2Br, और मैंने इसका नाम लिखा, दिस इज बेसिकली वन ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे ना लगे, बल्कि इस सेकंड कार्बन पे लग जाए। सो इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CH Br CH3 एंड इट बिकम अ 2 ब्रोमो। तो बहुत आसान सी बात है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब बताइए जनाब क्या किया है, सेम पोजीशन डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिमिलर फंक्शन ग्रुप, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ओके नाउ हेलोथेन, इट्स अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। जनाब marking it with asterisk. So you can clearly mark that this one is a chiral carbon. There are only two carbon. First one chiral nahi hai, the second one is a chiral carbon. When halothane react with UV light, homolytic fission occur and the carbon bromine bond break. Construct an equation to show the homolytic fission of this molecule। अच्छा आपने देखें, हमेशा याद रखिएगा जब भी इक्वेशन फॉर्म में होमोलिटिक फिशन आपको शो करनी होगी, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जो है वो याद रखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में आप किस तरह शो करेंगे। CH3 CF3 CH Br Cl, होमोलिटिक फिजन शो करना है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, सो F3 ऐसे ही रहेगा CH Cl, और यहां पर आप एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, प्लस Br फ्री रेडिकल। जिस कार्बन से आपने ब्रोमीन निकाला, रिमेंबर बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं, जिस कार्बन से आपने ब्रोमीन निकाला है उस कार्बन पे आप डॉट लगाएंगे एंड देन द अदर डॉट आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। ओके, कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर हमें देखना पड़ेगा कितना है जनाब, सो Br 35, 35 के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, अब देखिए 10 12 14 15 16 17 18, मेरे ख्याल में 30 हुए हैं अभी, है ना।
क्लियर। और आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू होगी, लेकिन इसने हमसे सिर्फ 3D 4s और 4p के बारे में पूछा है। तो आप देखें 4s में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 4p में हाँ 4p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब आगे, तो 4p में कितने आ जाएंगे 5, 35 बनाने ना, तो 4p 5, सॉरी 4p के बारे में पूछा। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 4p में 5, so 1 2 3 4 and then 5. That's how you have to write down the electronic configuration. देखिए प्रोटॉन नंबर 1 से 20 तक तो आती है, अब वो उससे आगे की भी पूछ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से लिखना जानते हो। प्रोटॉन नंबर 30, 31, 32, 33, 4s बिफोर 3d और 3d के बाद आप 4p आगे कंटिन्यू करेंगे, सही है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन विद द प्रोटॉन नंबर 35। सही है, एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द रिपीट यूनिट। दिस सॉरी रिपीट यूनिट से मोनोमर बनाने में मसला आता है। देखें, दीज आर द 2 कार्बन्स दैट शुड बी बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड इन द मोनोमर। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे ही कॉपी किया अपने पास, 2 कार्बन, सही है, और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज बेसिकली द मोनोमर। क्या करेंगे, ये सब कुछ खत्म करेंगे आप and just place a double bond here. So how to write down this? Yes, this is 1, यहाँ Cl लगा हुआ, यहाँ double bond, 1 2 3, 3 carbon and then you have a chlorine. So आप चाहें तो 1 2 3, ठीक है, 3 carbon है, is a double bond here, यहाँ पर आप एक क्लोरीन लगा दीजिए। This is the mono chloropropene. Now state one reason why the disposable of the item made from X is difficult. अच्छा याद रखिए, whenever you see any halogenalkane, so आप इसको लिखेंगे कि the combustion produce acidic gas. Combustion acidic gases, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात आप लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप एक ही बात को लिख सकते हैं, ठीक है, non biodegradable and the combustion produce acidic gases. Clear? Okay, this is again a question. The 3-stage reaction of halogenalkane, which is bromopropane, reaction 1 2 3, बहुत आसान सा है। देखिए रिएक्शन 1 में Br की जगह पर you have OH and you remember इसके लिए you add sodium hydroxide halogenalkane to alcohol, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और आप इसे हीट करें, रिएजेंट हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन पे लिख देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन अ सिमिलर वे NH2 आ गया Br की जगह पर, यस, यहां पर हम NH3 ऐड करते थे एक्सेस में, NH3 सॉरी एक्वस नहीं होता, आई थिंक इफ रिमेंबर NH3 इन एथेनॉल, ठीक है, हीट करते थे हाई प्रेशर पर। और again this is a nucleophilic substitution. In a similar way, next reaction में halogenalkane to alkene, it's an elimination reaction. Reagent is same, sodium hydroxide, but in this case it is in a ethanol, और आप इसमें हीट करते हैं और आपके पास the type of reaction is the elimination reaction, ठीक है, clear? A sample of 2 iodo react and in the same condition as reaction 1 produce this. Explain why 2-iodo react much faster as compared to 2-bromo. The similar आप लिखेंगे the carbon iodine bond length is large and the bond energy is weaker. तो इसका simple सा आंसर होगा weaker bond, so
less smaller bond energy. ठीक है, आगे चलते हैं। स्केलेटन फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, यस सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ये है आपके पास या 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दिस इज ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 कार्बन अपने जगह रहे, एज आई सेड मैनी टाइम लास्ट क्लास में भी, इसका मतलब होता है दिस इज CN नाइट्राइल, and then you can see the nitrile is getting converted to carboxylic acid, and then the carboxylic acid is converting to alcohol। बहुत सिंपल सी एक थीम है, क्लियर। हैलोजेनोअल्केन से नाइट्राइल KCN, रिमेंबर, और फिर वहां से KCN डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो नाइट्राइल विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। सही, मैकेनिज्म कंप्लीट करना है। CN ओके, सो अटैक दिखाना है, एरोस बनाने, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और अब आप अटैक दिखाएंगे इस कार्बन से पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। चाहे तो आई थिंक यू कैन ड्रॉ द लोन पेयर ऑन ब्रोमीन एज वेल, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, लेकिन ये काम सही है, यहाँ चाहें तो आप, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना, दैट्स इट। आई थिंक दैट्स इट। 2 मार्क्स का है, पार्शियल चार्जेस और एरो बनाने का एक एक मार्क है। In step 2, butane nitrile is heated with HCl. A hydrolysis reaction occur. Construct an equation for the reaction. Butane nitrile react कर रहा है, hydrolysis reaction हो रहा है, तो butane nitrile क्या है जनाब, CH3 CH2 CH2 CN। ठीक है, ये कार्बन भी काउंटिंग में काउंट होता है। ब्यूटेन नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, आपके पास किसके साथ हो रही है जनाब, HCl के साथ हो रही है, विच इज एक्वस, तो आप इसे बनाएंगे CH3 CH2 CH2 COOH प्लस अमोनिया और वाटर बनना चाहिए, लेकिन आप इसे NH3 प्लस H2O, नहीं NH3 के बजाय we make NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है जी, अब इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो तो आप इस साइड पे वाटर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चेक द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो तो जस्ट ऐड वाटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में द रिएक्शन इज बेसिकली टेकिंग प्लेस विद वाटर, तो अगर आपके पास राइट साइड पे ज्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहे हो, हाइड्रोलिसिस में लेफ्ट साइड पे कम आ रहे हो, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड पे वाटर ऐड कर सकते हैं। स्टेप 3, द रिडक्शन रिएक्शन, उसने कहा कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेप 3 वाले की। सो स्टेप 3 में आपके पास यू हैव CH3 CH3 CH2 CH, ओके, ब्यूटेन, दिस इज दिस CH3 CH2 CH2 COOH, और रिडक्शन हमेशा H से रिप्रेजेंट की जाती है, फॉर्मिंग CH3 CH2 CH2 CH2OH, कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल। अब आप देख लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 10। एक ऑक्सीजन निकल रहा है तो वाटर भी आएगा, 12। सो यस, यू हैव टू प्लेस 4 हियर। नाउ दिस इक्वेशन इज वेल। Reagent for this, lithium aluminum hydride इन एथर, याद है कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो दैट्स, ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको बाद में एक दफा जरूर रिवाइज कीजिएगा, विच इज द इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी भी वो हमेशा ऐसी लिखी जाएगी, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल की इक्वेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल में एज आई सेड कि if you're unable to balance hydrogen and oxygen, just add water on the left hand side, because it's a hydrolysis, the reaction with water.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट्स बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन। इसी में एक दो चीजें डिस्कस करते हैं देन वी वाइंड इट अप। Z इज अ मॉलिक्यूल which contain element carbon, hydrogen and oxygen that contain an alkene, a carboxyl functional group। ठीक है जनाब। कंप्लीट द टेबल ऑब्जर्वेशन। ब्रोमीन ऐड करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ब्रोमीन डीकलराइज, ठीक है, और रेड ऑरेंज से टू कलरलेस। कार्बोऑक्सिल ग्रुप का मतलब, ठीक है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप का मतलब इट कंटेन OH, मे बी कार्बोऑक्सैलिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ एफोरबेसिस मिलते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। कार्बोऑक्सिल ग्रुप का मतलब कार्बोऑक्सैलिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है। अगर OH की बात हो रही होती है सिर्फ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। इट कंटेन कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, सी, ये हमें बनाना पड़ेगा जनाब। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, 41.38, 3.45 and 55.17 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा जनाब 3.45। ये तकरीबन सारे ही 3.45 आ रहे हैं। 1:1:1, ठीक है। तो CHO एम्पेरिकल फॉर्मूला। जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स। ओके बेटा, सो CHO इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिए कैसे होगा। A mass spectrum is given, yes, this is basically, आपको याद होगा ना, this is the base peak है ना, जिसकी आपके पास परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा 100% आती है, किसी एक फ्रैगमेंट की वजह से आ रही होगी। In a mass spectrum, this is basically the M+1 peak है ना, 117, and 116 is basically the molecular ion peak. This is the MR, ठीक है। 116 is basically technically the MR of this molecule। सही है बेटा। आगे चलते हैं। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Z, एक्सप्लेन योर आंसर रेफरिंग टू द मॉलिक्यूलर आयन पीक। अच्छा जनाब देखो, MR है तुम्हारे पास 116, ऐसा ही है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO। आपको क्या वैल्यू चाहिए? आपको n वैल्यू चाहिए ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने की, याद है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला को आप n वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है, याद है ना ये बात। अब n वैल्यू निकालने के लिए एम्पेरिकल का MR कितना है? 29। तो अगर मैं 116 को डिवाइड कर दूंगा 29 से तो मेरे पास आंसर आएगा जनाब, क्या आएगा? 116 डिवाइडेड बाय 29, द आंसर इज 4। यानी द n वैल्यू यहां पर क्या है? 4। सो अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को CHO को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C4H4O4, दिस इज द एम्पेरिकल। याद है ना, एम्पेरिकल MR फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय MR फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय MR फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला, n वैल्यू दे देता है, ठीक है। ये O लेवल से करते आ रहे हैं आप। n वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो वो 4 है, उससे आप एम्पेरिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। यूज फिगर 6.1 which is this one, suggest the formula of the fragment mass to charge ratio 45 and 71। अच्छा, अब देखें 45 में आपको सिर्फ ये देखना है कि 45 में मैक्सिमम हाउ मेनी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू कैन फिट इन। 45 में हाउ मेनी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू कैन फिट इन। लेकिन थोड़ा सा आपको जहन में हिंट ये रखनी चाहिए
कि मुझे पता है कि this is the molecule that contain a carboxylic acid group. ये एक hint मुझे बहुत initially दे दिया गया था. So if I calculate the MR of carboxylic acid, so 12 plus 32 plus 1, I think COOH का MR कितना आ रहा है? 45 ही आ रहा है. तो वहां से मुझे hint मिली कि yes, this could be because of carboxylic acid. अगर ये hint ना given होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 45 में मैक्सिमम कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम फिट कर सकते हैं, हम फिट कर देते हैं. सही है. लेकिन यहाँ पर एक हिंट गिवन थी कि यस इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट. तो सबसे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को चेक किया, तो मुझे पता चला कि यस 45 ही उसका आ रहा है. तो COOH, और यहाँ पर आप इसके साथ एक पॉजिटिव साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप फ्रेगमेंट लिखते हैं उसके साथ पॉजिटिव साइन लिखते हैं. अब देखें C4H4O4 में से एक कार्बन चला गया, बाकी बचा C3H भी3 बचा, और O कितने बचे? 2 बचे. इस पे लगा दें पॉजिटिव. ये रिमेनिंग टोटल 116 था ना जनाब, उसमें से 45 तो COOH का अलग हो गया, बाकी बचा कितना? बाकी बचा आपके पास 71. तो 71 में C4 में से जो रिमेनिंग कार्बन होंगे वो होंगे हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन हो जाएंगे. इसके बाद लास्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. लास्ट पार्ट डिफरेंट इज इन अ वे कि आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन. अब ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है 4 कार्बन, ठीक है. O4 का मतलब यस इट मस्ट कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. सो हमने दोनों एंड पे लगा दिए जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. वी हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज यू हैव 4 ऑक्सीजन. एल्कोहल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट ओनली हैज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डबल बॉन्ड. ठीक है. और डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं? डबल बॉन्ड यहां पर लगाऊंगा. नाउ रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू राइट. ठीक है. आप इसका डिस्प्ले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आप इसका स्केलेटन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. देखें, अ लॉट मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ पार्ट. रिसेंट ईयर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस नजर आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर श्योर यू बी एबल टू सॉल्व दीज वन. ठीक है. एक दफा और सुन लीजिए. देखें, यहां से मुझे पता था कि इट कंटेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड इट कंटेन अ डबल बॉन्ड. आगे गए, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया. एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो MR था वो 29 था. 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. उसके बाद मॉलिक्यूलर MR था इसका 116, जो कि हमें यहां से पता चला. ठीक है. सेकेंड लास्ट पीक, उसको हमने एम्पेरिकल के MR से डिवाइड किया, मेरे पास 4 आया. एम्पेरिकल फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया. एंड देन दिस से कि ये जो 45 पे सिग्नल आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, तो हमने क्या कहा कि 45 में मैक्सिमम कितने कार्बन, हाइड्रोजन हम फिट कर सकते हैं, हम कर दें. लेकिन हमारे पास एक हिंट था कि इट कंटेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो मैंने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को चेक किया एंड लकीली इट इज 45. तो मैंने कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ COOH, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है. बाकी 45 में से 71 किसकी वजह से आ रहा होगा, तो मैंने 116 में से 45 यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को माइनस किया, मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया. देन दे आस्क अबाउट दिस. ये थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम करता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इसकी आदत हो जाएगी. ठीक है. सो आई एम कीपिंग इट टिल हियर फॉर दिस पेपर. थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा इन दिस पेपर, क्योंकि कुछ चीजें हमें डिस्कस डिटेल में करनी पड़ी. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. I'm just staying few more minutes.